لیکن ابھی لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، عمران خان نے کل خطاب کے دوران بولا میں جانتا ہوں میرے نوجوان ایل او سی کی طرف جانا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کے اجلاس کا انتظار کریں پھر فیصلہ کریں گے ایل او سی کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں آج کشمیر کراس کر جاؤں. میرا دل اتنا درد سے رو رہا، وہ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا، وہ برداشت نہیں ہو رہا. پھر بنے گا بات. کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان. عمران خان صاحب جو اقدام کر رہے ہیں کشمیر بارے صحیح کر رہے ہیں. ہاں صحیح کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. وہ جو عمران خان کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ نہ چونچنا کو کیتی تھا، میرا دل کرتا کہ بارڈر کراس کر جاؤں. تو کی لگتا ہے ہوں مسئلہ حل ہو جائے؟ میرا مسئلہ انشاءاللہ تعالی نہ بھی ہوتا تو میں پار جا کے کر دیا، میں کشمیر پار کر جانا. میں جڑا برداشت نہیں ہو رہا ظلم. کوئی بھی انسان ہے وہ سنتا ہے کشمیر تو اتنا ظلم ہو رہا نہیں ہونا چاہیے. زیادتی ہو رہی، زیادتی ہو رہی، پوری دنیا پہ ویکھ رہی ہے مسلمانوں کے اتنے زیادتی ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یاد رکھے ایک دن آئے گا، ایسا دن آئے گا کہ انڈیا جو ہے نا، کشمیر جو ہے ہمارے پاکستان کا ہے. اللہ خدا کے فضل و کرم سے ایک دن بنے گا، کشمیر پاکستان بنے گا انشاءاللہ. خدا کے فضل و کرم سے ایسے بھاگے گا یہ کہ خدا کی قسم کے اس سے نظر بھی کچھ نہیں آئے گا. ہم یہ تو یہ کہتے ہیں نا، ہم دلی پہ بھی جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جی، آپ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، دنیا کا کوئی دیندار بندہ ہو، دنیا کا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو جی، جب وہ ظلم دیکھتا ہے نا تو وہ دونوں پارٹیوں کو دیکھتا ہے کہ حق پہ کون ہے، سچا کون ہے. ہر بندے کے علم میں یہ بات ہے، چاہے وہ جرمن کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے برطانیہ کا ہو. 182 ملک ہیں جی پوری دنیا میں، اس سے زیادہ قومیں پیش بھی ہو سکتے ہیں. تو پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ کشمیر میں ظلم ہے. کیونکہ دیکھیں، صحافیوں نے، امریکہ کے صحافیوں نے، برطانیہ کے صحافیوں نے، چائنا کے صحافیوں نے، جرمن کے صحافیوں نے، دنیا کے تمام صحافیوں نے لکھا. اور میں پہلے یہ بات میں مکمل کر لوں کہ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے حق اور سچ کی بات لکھی ہے کہ کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. جب یہ بات ان کی عوام تک پہنچتی ہے تو ہم، چاہے وہ انگریز ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، یا دنیا کے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یار کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں وہ ہیومن رائٹ والے ایک ہمارے بڑا زبردست، انہوں نے جب وہ اقوام متحدہ میں وہ فائل پیش کی، آپ صحافی ہیں، آپ ان کا نام جانتے ہوں گے، تو وہ رو پڑے کہ کشمیر کے اندر عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو آج کشمیر کا یہ جو تنازع ابھی کھڑا ہوا ہے نا، اس سے پہلے وہ انہوں نے کچھ عرصہ 2-3 مہینے پہلے ایک اپنی جا کے اقوام متحدہ میں فائل پیش کی اور اس کے بتایا کہ انسانی حقوق کی یہ کشمیر میں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچے، وہ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، پوری دنیا سلام پیش کرتی ہے، پوری دنیا حیران ہے. وہ میرے پاس فیس بک میں بھی ہے، میں نے رکھا ہوا ہے سنبھال کے. تو وہ رو رہا ہے. وہ اس جگہ پہ جب پہنچتا ہے کہ کشمیر کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، وہاں ظلم کیا جا رہا ہے کشمیریوں پہ، کشمیری ماں بہنوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ رونا شروع ہو گیا. اور روتے روتے وہ جس طرح بچہ ہچکیاں لیتا ہے اس طرح لینا شروع کر دیا. پھر اس کی جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک اور ممبر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے فوری طور پہ ان کو پانی پلایا، لیکن اس کی آواز بحال نہیں ہو رہی تھی. تو درد ہے قوم کے اندر، ہر بندے کے دل کے اندر درد. دیکھیں، جس کے اندر دل ہے نا اس کے اندر درد ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی مذہب سے بھی تعلق. آج اللہ کا شکر ہے دنیا پوری جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں قیامت ڈھائی جا رہی ہے. اگر جرمن نے، چائنا نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، فرانس نے، اٹلی نے، کینیڈا نے، ہانگ کانگ میں کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے آواز نہ اٹھائی گئی اور ان کے حقوق کی بات نہ کی ہوئی. ان کی ظلم کی کہانی تمام صحافیوں نے، میں ان صحافیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اندر جا کے سچ لکھ کے پوری دنیا کو بتایا کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں پہ قیامت ڈھائی جا رہی ہے، کشمیریوں پہ ایک
बे इंतहा यानी कि वो जबर किया जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, लेकिन उस मोदी ने और मोदी के साथियों ने और वो जो उनकी एक कोई वो डंडा तंजीम बनाई हुई है वो वहाँ पे कश्मीर में भेजी हुई है और कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं और हमें खबरें पहुँच रही हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें अक़वाम मुत्तहिदा इजाज़त देगी और कब हमें इंसानी हकूक़ वाले कहेंगे कि भाई ठीक है पाकिस्तानियों ये कश्मीर में जुल्म हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी आएंगे, जिस तरह आज वो जुलूस निकालते हैं कल वो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला कश्मीर के हकूक़ के लिए और मोदी को सबक याद कराएंगे और इंशाल्लाह ताला मोदी को पता चल जाएगा। तो उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है कि अगर हम ऐसे ही पहले ही कुछ करेंगे तो वो भी कुछ कर सकते हैं, लिहाजा हम बिल्कुल अपनी सोची समझी अपने के तहत सोचेंगे, फिर वो जो कहेंगे हम इंशाल्लाह उसके पूरा अमल करते हुए अपनी जान का नजराना भी पेश करेंगे। हम डरते नहीं हैं, मुसलमान हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। देखिए आपको जो हालात नज़र आ रहे हैं बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में, तो हम बिल्कुल जो अकेले हो गए ना। जितने भी बैनुल-अक़वामी हमारे इस्लामी दोस्त ममालिक थे वो भी हमारा साथ उस तरह से नहीं दे रहे। जो चाइना भी है, जितना भी है, हमारी खारजा पॉलिसी भी इस टाइम नाकाम जा रही है। इमरान खान को चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी दौरे करे, तमाम इस्लामी ममालिक के जिससे हम नरेंद्र मोदी ने दौरे किए हैं, उसने अपनी बात वहाँ पे पहुँचाई है। बजाय इसके मुल्क के के अंदर अफरा तफरी फैलाने के उसे बैरून मुल्क जाना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए बैनुल-अक़वामी दुनिया को कश्मीर का मसला हल करें वो, और इससे एटमी जंग भी छिड़ सकती है। ठीक है, इमरान खान साहब उन्होंने बोला कि LOC की तरफ जाने का, नौजवान LOC की तरफ जाने के लिए बेताब है, बेचैन है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास हो रहा है उसके बाद हम फैसला करेंगे कि LOC की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना। तो क्या कहते हैं? जी हम इमरान खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब भी उसकी तरफ से कोई भी अगर कॉल आएगी तो हम जो है 24 घंटे हाज़िर है इंशाल्लाह। तो हम कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। पूरी पाकिस्तान कौम जो है वो कश्मीर को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। कश्मीर जो है हमारा शहर रह गया और इसको किसी मुश्किल हालत में हम नहीं छोड़ेंगे। तो जी इंशाल्लाह हम उसकी कॉल का इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इमरान खान का कल मुज़फ़्फ़राबाद जलसा था। इमरान खान ने बोला कि हमारे नौजवान LOC की तरफ जाना चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है उसका इंतज़ार करें, फिर हम सोचेंगे LOC की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना। तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में असल में सिचुएशन ये है आज़ाद मकबूजा कश्मीर की कि वहाँ पे ज़रा तिब्बी लिहाज से सहूलियात नहीं है और हमें ज़रा इंसानियत के लिहाज से वहाँ पे रोज़ाना तकरीबन 6 से 8 कश्मीरी यानी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से शहीद हो रहे हैं। तो हम मुसलमान हैं, हम ये समझते हैं कि उस तरफ भी मुसलमान हैं, इस तरफ भी मुसलमान हैं। अगर हम कोई स्ट्राइक करते हैं या कोई मतलब इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसमें हमारा भी नुकसान है। तो आलमी बरादरी से ज़ाहिर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ज़ाहिर इस पे इसका हल जंग नहीं है। जंग हुई तो दोनों तरफ से मुसलमान भी ज़ाहिर है वहाँ पे इंडिया में या मकबूजा कश्मीर में जो हैं वो ज़्यादातर नुकसान मुसलमानों का ही है। तो हम ज़ाहिर है कश्मीरी जो लोग हैं हम सिर्फ इमरान खान साहब की जो क़यादत में रहना चाहते हैं और उनके हुक्म की हम तामील करना चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोई हम इश्तियाल अंगेज़ी ना करें, वरना हमारा हर बच्चा हर नौजवान जो है LOC पार करने के लिए तैयार है। तो हम इंशाल्लाह हमारे अंदर भी जज्बा शहादत जो है मौजूद है, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि मैं भी ज़रा कश्मीर हूँ और ऐसे जितने भी यंग हैं हमारे सब की यही ख्वाहिश है कि ज़रा हमें शहादत का रुतबा मिले या, लेकिन इसमें यह है कि अभी पूरी दुनिया खामोश है। ये मुसलमानों की बात हो रही है, यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही है। तो इसमें ज़ाहिर है पूरी आलम में मुसलमान जो हैं सबको मिल के ज़ाहिर है उसमें वो करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये याद रखे एक दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा कि इंडिया जो है ना, कश्मीर जो है हमारे पाकिस्तान का है। अल्लाह खुदा के फजल करम से एक दिन बनेगा, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। खुदा के फजल करम से ऐसे भागेगा ये कि खुदा की कसम के इससे नज़र भी कुछ नहीं आएगा। हम ये तो ये कहते हैं ना, हम दिल्ली पे भी झंडा लगाएंगे इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से। ये कहते हैं ना गाय की कुर्बानी देना था अफजल है। ये कहते हैं गाय कहाँ से आई, गाय इनकी वालदा है, गाय की कुर्बानी देनी अफजल है। हम इंशाल्लाह अगले साल जाकर गाय की कुर्बानी इनके इलाके में देंगे खुदा के फजल करम से। ये क्या कहते हैं, हमें सिर्फ आर्डर मिलने के देर है। खान सबको कहें
कि जरा जी जाओ जंग के लिए तैयार हो जाओ, हमारी जानी में चली जाए, हमारे बच्चों की जान भी चली जाए, तो हम कश्मीर लेकर रहेंगे। कश्मीर जो है हमारी हिस्सा है, इस कश्मीरों का हिस्सा है। कश्मीरी ये याद रखें कि मुसलमान और पाकिस्तान ये तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ रहेंगे और कश्मीर लेकर रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मसला ये ना कि निकलना चाहिए, हमें भी निकलना चाहिए, भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो आजकल बहुत उछल रहे हैं। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह ताला उनको इसका सबक सिखाएंगे कि उनका पूरा ख़ानदान याद रखेगा। अच्छा, वज़ीर इत्तलात फरदौस आशिक अवान का कहना है अगर भारत जंग में पहल करे तो ख़त्म पाकिस्तान करेगा, तो क्या कहते हैं? इंशाल्लाह ताला ख़त्म हम ही करेंगे, कोई दूसरा मुल्क नहीं है कि उनको ख़त्म करे। इस्लामी मुल्क जड़े ना सिर्फ हमारा किला है पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला मोदी याद रखेगा कि किससे टक्कर लिया हमने। अच्छा, मौलाना फजल रहमान 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तो क्या उन्होंने कश्मीरियों के लिए कुछ इकदाम किए थे? मौलाना फजल रहमान तो अब पूरी दुनिया को पता है कोमुला डीजल है, वो क्या कर सकते हैं। सिर्फ हमारा एक ही है, इमरान खान, बस वो कुछ करेगा इंशाल्लाह ताला हम ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस ये कश्मीरियों के लिए निकल पड़े हैं, तो क्या कहते हैं आप इसके? बहुत अच्छी बात है, निकलना चाहिए, हमें भी निकलना चाहिए और कश्मीरों की हमायत करना चाहिए। तो फरदौस आशिक अवान का कहना है कि अगर भारत जंग में पहल करे ख़त्म पाकिस्तान करेगा, तो क्या कहते हैं आप इसके? इंशाल्लाह पाकिस्तान ही ख़त्म करेगा जंग, उनकी नस्लें तबाह कर देंगे। और मौलाना फजल रहमान 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तो क्या उन्होंने कश्मीरियों के लिए कुछ इकदाम किए थे? इनकी बात है वो तो मौलाना डीजल ही है, जो खान साहब ने 1 साल में किया है वो मौलाना 10 साल में भी नहीं कर सकता था।